السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم جیسے ہی آپ کے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی بک کو کھولتے ہیں تو سامنے ہی فرسٹ پیج پہ لکھا ہوا آتا ہے ماڈرن پروز ایسیز. وہ لوگ جو آگے جا کر انگلش لٹریچر یا اردو لٹریچر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، بلکہ سب کے لیے، لیکن ان کے لیے خاص طور پر یہ چھوٹی چھوٹی سی لٹریری ٹرمز بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ صرف اگر بکس اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مجھے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ پھر نالج گین نہیں کر سکتے. جب بھی آپ کوئی نئی بک، کوئی بھی نئی چیز آپ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ہو تو اس میں چھوٹی چھوٹی ٹرمز کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو کہ آپ کو نہیں آتی ان کو پہلے ڈھونڈا کریں، سرچ کیا کریں اور اس کو ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اب آپ دیکھیں اگر پوری بک کو یا جتنی بھی رائٹنگس انکلوڈ ہیں ان کو پروز ایسز کا نام دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری رائٹنگس اس ٹائٹل کے انڈر آتی ہیں. تو آپ کو اس ٹائٹل کو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو بہت پریسائزلی اور بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیا ہے. اوکے جی، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کیا چیز ہے. ایسے جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے ٹو اٹیمپٹ، ٹو ٹرائی، کوشش کرنا، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا. اور اس کو بڑے آسان الفاظ میں اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے a short piece of writing on a particular subject. آپ ایک خاص کسی موضوع کو لیتے ہیں اور اس پہ بڑا ہی پریسائزلی، بڑا ہی بریفلی جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں سمپلی آپ کے سمجھنے کے لیے. اب پروز کیا ہے؟ اس کو بھی اگر ہم سمپلی ڈیفائن کریں تو پروز از اے فارم آف لینگویج دیٹ ہیز گرامیٹیکل سینٹینسز اینڈ پیراگرافس. اور اس کو مزید میں صرف اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ جو ہے جو پروز ہے دیٹ از اپوزٹ ٹو پوئٹری. ایک ورس مجھے یاد آ رہی ہے، وداؤٹ ہز لو بلا in loss can hardly dwell here or across. اب یہاں پر اگر فرسٹ لائن دیکھیں تو اس میں گرامیٹیکل رولز کو فالو نہیں کیا گیا. کوئی از، آر، ایم یا ورڈس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ آپ کو گرامر کے رولز کے مطابق نظر نہیں آئے گی. اسی طرح سے اگر اسی بات کو سیدھا سیدھا کہہ دیا جائے، بلا کہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر نامکمل ہوں اور اس دنیا میں اور آخرت میں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ابھی جو باتیں میں نے سیدھے سیدھے الفاظ میں کہیں وہ ساری کی ساری پروز تھی. ٹھیک ہو گیا جی؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹرمز سمجھ میں آ گئی ہیں. آپ کا پہلا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے دا ڈائنگ سن اور اس کو لکھا ہے سر جیمز جینس نے. آپ جب بھی کوئی رائٹنگ پڑھتے ہیں کسی بھی رائٹر کے بارے میں تو یہ بھی ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے کہ آپ اس کے رائٹر کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور دیکھا کریں، ضرور پڑھا کریں. میں آپ کو 2-3 لائنس میں سر جیمز جینس کے بارے میں بتاؤں گی. سر جیمز جینس جو ہے وہ یونائٹیڈ کنگڈم میں پیدا ہوئے. یہ انگلش فزیسسٹ تھے، آسٹرونامر اور میتھمیٹیشین. اور یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے بتایا کہ پوری کائنات میں میٹر جو ہے وہ کنٹینیوسلی کریٹ ہو رہا ہے. یہ بڑی زبردست تھیری ہے اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے. آپ ضرور اس کو گوگل کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا تھیری ہے. یہ دو ٹرمز جو آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہی ہیں آپ کے پورے ایسے میں بار بار ان کا ذکر آیا ہے. تو چیپٹر کو پراپر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ان دونوں ٹرمز کو بھی لائٹلی سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اسٹار اور پلینٹ. آپ نے چھوٹی کلاسز میں پڑھا ہوگا لیکن جسٹ فار دا سیک آف ریویژن میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹار کیا چیز ہے اور پلینٹ کیا ہے. اسٹارس اور پلینٹ جو ہیں وہ دونوں ہی ہیونلی باڈیز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو اسٹارس ہیں جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، اسٹارس جو ہیں وہ اپنی جگہ چینج نہیں کرتے. دے آر فکسڈ. وہ جہاں پر بھی ہیں وہاں پر
फिक्स है, जबकि जो प्लैनेट हैं वो अपने ऑर्बिट में भी चक्कर काटते हैं और स्टार के गिर्द भी चक्कर काटते हैं। जिस तरह से बहुत सारे स्टार्स भी हैं और प्लैनेट्स भी हैं, तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो सन है और अर्थ है। तो जो सन है वो अपनी जगह पे फिक्स है और अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में भी चक्कर काटती है और सन के गिर्द भी चक्कर काटती है। ये एक डिफरेंस हो गया। अब सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो स्टार है उसकी अपनी लाइट होती है, जो प्लैनेट है उसकी अपनी लाइट नहीं होती। जो अर्थ है वो लाइट कहाँ से रिसीव करता है? सन से। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया स्टार और प्लैनेट को समझाने के लिए, ताकि हम जब चैप्टर पढ़ें तो हमें पता हो कि स्टार और प्लैनेट क्या है, क्योंकि बार बार ये टर्म राइटर यूज़ करेगा। इससे पहले कि मैं आपके लिए चैप्टर को लाइन वाइज एक्सप्लेन करूं, मैं चाहती हूं कि मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज़ कर दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर असल में है क्या और किस चीज़ के बारे में क्या मेन आइडिया है इसका। द डाइंग सन सर जेम्स टीन्स की थेरी को प्रेजेंट करता है। ये उनके ख़याल को, उनके नज़रिए को प्रेजेंट करता है कि उनके मुताबिक कायनात का वजूद कैसे हुआ, कायनात कैसे बनी है। अगर आप अपनी इल्हामी किताबों को, कुरान को, बाइबल को या कोई भी इल्हामी किताब है उसको पढ़ के देखें कि ज़िंदगी का वजूद या कायनात का वजूद कैसे हुआ, तो वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, साइंस का और दीन का या मजहबी जो व्यू पॉइंट है इस बारे में क्वाइट डिफरेंट है। सो ये एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है सर जेम्स जीन्स का, और इनके मुताबिक ऐसा हुआ होगा। उनका ख़याल है कि ज़िंदगी ऐसे वजूद में आई। राइटर के मुताबिक ये जो कायनात है वो बहुत 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 बड़ी है। हम उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो कितनी बड़ी है। और इस पूरी कायनात में खरबों सितारे हैं। सितारे, स्टार्स, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टार क्या चीज़ होती है। और ज़्यादातर स्टार्स जो हैं वो इतने बड़े हैं कि उनके अंदर हमारी जो ज़मीन है उस जैसी लाखों करोड़ों ज़मीनें उसके अंदर आ जाएं एक स्टार के अंदर, और फिर भी उस स्टार में जगह बच जाएगी। ठीक है, और एक मुहतात अंदाज़ा है कि अगर कायनात में सितारों को की तादाद को काउंट करना शुरू कर दिया जाए तो वो शायद रेत के जो ज़रे हैं उनके बराबर हो सकती है। अब रेत के ज़रों को कौन गिन सकता है? इसी तरह से सितारों को भी कोई गिन नहीं सकता। जब हम आसमान पे देखते हैं ना तो यूँ लगता है जैसे स्टार्स बहुत करीब 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 से हैं, और शायद अगर कभी हम लेटे लेटे उसको मेजर करने की कोशिश करें तो लगता है अच्छा ये मेरे एक हाथ, जो एक स्टार और दूसरे स्टार से एक हाथ के फासले पर है। हालांकि ऐसा नहीं है, हकीकतन इतना ज़्यादा फासला है, इतना ज़्यादा फासला है कि ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार के करीब आ जाए, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से सर जेम्स टीन्स के मुताबिक कुछ स्टार्स जो हैं वो ग्रुप की सूरत में मूव करते हैं, ठीक है, और कुछ अकेले मूव करते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि शायद ये नामुमकिन है कि एक स्टार या एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए, लेकिन क्या हुआ कि मुसन्नफ़ के मुताबिक 2 अरब साल पहले एक बहुत रेयर सा वाक़या हुआ। एक सितारा घूमता फिरता हुआ एक्सीडेंटली सूरज के करीब आ गया। अब वो जैसे ही सूरज के करीब आया, सूरज की सतह पर बड़ी बड़ी सी लहरें बनना शुरू हो गई। ठीक है, और जैसे जैसे वो उसके करीब आता चला गया, वो जो लहरें हैं उन्होंने एक पहाड़ की सूरत इख्तियार कर ली। फिर क्या हुआ कि वो सितारा जब कुछ देर के बाद सूरज से पीछे हटना शुरू हुआ तो डेफिनेटली सूरज और उस सितारे के दरमियान एक खिंचाव पैदा हो गया, और उस खिंचाव के अमल में जो सूरज है वो टूट गया और उसके जो डिफरेंट टुकड़े थे, डिफरेंट हिस्से थे, वो खिला में इर्द गिर्द गिर गए। कुछ टुकड़े बहुत छोटे थे और कुछ बड़े थे। अब ये जो टुकड़े हैं इनको प्लैनेट का नाम या सियारों का नाम दिया गया है, क्योंकि जब वो टूट के गिर गए तो सूरज
की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें से ख़त्म हो गई, अब तो उसकी उनके अंदर लाइट नहीं है। फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि ये जो टुकड़े थे इनमें से एक टुकड़ा जिसको हम ज़मीन कहते हैं, ये इस पर टेम्परेचर इतना मॉडरेट हो गया कि वहाँ पर ज़िंदगी का आगाज़ होना शुरू हो गया। चैप्टर के आखिर में मुसन्निफ़ कहता है कि जब हम कायनात की नौइयत को या इसके पर्पस को समझने की कोशिश करते हैं तो हम खौफ महसूस करते हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम सोचते हैं कि कायनात तो बहुत बड़ी है, कायनात का तो फासला इतना है कि हम मेजर नहीं कर सकते, तो हमें खौफ महसूस होने लगता है। उसके अलावा ये हकीकत भी हमें खौफ दिलाती है कि हम तन्हा हैं, क्योंकि जैसी ज़िंदगी इस सैयारे पर ज़मीन पर है वैसी आपको कायनात पर कहीं और नज़र नहीं आती। ठीक है, और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो पूरी हों। अब बहुत सारे सैयारे ऐसे हैं जो इंतहाई गर्म हैं, इतने गर्म हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो पिघल जाए, कोई ज़िंदा चीज़ जो है वो वहाँ रह नहीं सकती, और कुछ इतने ठंडे हैं कि वहाँ जाके जम जाए। सो ज़िंदगी का वजूद सिर्फ वहाँ पर मुमकिन है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट हो, टेम्परेचर जो है वो इतना हो कि वहाँ पर ज़िंदा रहना मुमकिन हो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हम चैप्टर को थॉरली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।